Hello and welcome back to Beyond the Boundary, a show where we discuss everything Indian cricket. पिछली बार हमने बात की थी about the probable potential 11 for the ODI tour of New Zealand and India. तो उस टाइम पे कुछ predictions थी। अभी official announcement हो चुकी है इंडियन BCCI की तरफ से। तो let's see what are the hits, misses and what could have been different from BCCI and India team's point of view. First off, two major selections. Rishabh Pant is back in the team, and so is Shreyas Iyer. Your thoughts, Dad? Hi, Happy New Year to you. Happy New Year. Yeah, as predicted, 10 players of T20 has been rested Hmm. and the team has announced. And I just want to say one point, see the depth of Indian cricket. 10 players have been rested, still one day squad has been announced and still we are discussing who are the hits and who are the misses. Uh, Right. so um, uh, India can even field two teams. Okay. So coming to the point, in my opinion, the biggest miss is Mohammad Shami. He should have been there in the team, and straightway he should have been there in the place of Arshdeep, where we have rested 10 players. We could have rested Arshdeep also because Arshdeep is your main bowler in T20. इस So चीज के ऊपर तो Shami काफी should have been, कंट्रोवर्सी भी हुई है. so Shami should have been there in place of Arshdeep. And rest of the team, we last time discussed that whether Rishabh Pant will make it or will not make it. But Rishabh Pant has been given new lease of life. Rishabh Pant has made it to the team. Gaikwad has missed it, but you can't help it because he scored century in the last one day he played. But because Iyer is fit, so Iyer has to come in the team. The only player whom who could have gone out and um, basically Gaikwad could have come in is, in my opinion, Rishabh Pant, because that while selecting, there may have been debate on the middle order stuff, that Rishabh Pant or Gaikwad, because three one days you don't need second keeper. Rishabh Pant may have got the edge because probably uh, the captain has backed him, or they are looking for a left-handed batter in the middle. But in my opinion, it doesn't make the 11. It doesn't make the 11 if India is going with the thought process of six bowlers. Because unfortunately, any of our top batters are not bowlers, which used to be there in the old Indian teams when Sehwag used to bowl, Sachin used to bowl, and even Rohit Sharma in his younger days used to bowl. But now all five or six batters, nobody bowls. So तो you need फ्लेक्सिबिलिटी to, चली जाती है टीम से. हाँ, तो छह तो बॉलर चाहिए ही ना। अगर छह बॉलर चाहिए हैं तो आपको फिर ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को आप नहीं खिला पाओगे, राइट. क्योंकि नाउ एज टीम इज इन फ्रंट ऑफ अस, आप सीधा देख लो, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, अय्यर। ये तो तो आपका टॉप फाइव वैसे ही है. ये तो टॉप फाइव आपके हो गए। फिर हम्म. जड्डू आपका छह हो गया। राइट. जड्डू आपका छह हो गया। और अगर आपने चार बॉलरों को लेना है तो तीन पेसर हो गए, हम्म. तो नौ हो गए। कुलदीप यादव 10 हो गया, राइट. है ना। तो एक ही स्लॉट बचता है बीच में। अब एक स्लॉट में अगर आपको ऋषभ पंत को डालना है तो आपके पास सिर्फ पांच बॉलर हो जाते हैं। तो वन बॉलर हैविंग ऑफ डे, देन यूर गॉन। तो राइट. आपको वहां नीतीश रेड्डी जा वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। In my opinion, Nitish Reddy is not a like for like substitute for Hardik Pandya. वो मेरे तो हो हिसाब ही से नहीं। this is what they want him to be, but इस लेवल पे वो अभी पहुंचा नहीं है मेरे वो हिसाब है से. नहीं है, वो बनाना चाह रहे हैं। राइट. ही इज अ वेरी गुड फील्डर, हम्म. एक्सेप्शनल फील्डर। राइट. ही इज अ गुड बैटर, हम्म. बट बॉलिंग में वो उतना नहीं है। तो हार्दिक पांड्या है। कल आपने देख ही लिया, एक ही ओवर में 34 मार के उसने अपने 100 पूरा किया है। तो हार्दिक पांड्या, तो उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं कर सकते अभी आज की डेट में आप, है ना। वो ही एक प्लेयर है जो इररिप्लेसेबल है आज की टीम में, वो तो आज है. की डेट में, है ना। उसमें तो कोई डाउट वो नहीं. नहीं है ना। सो टीम इज गुड, एंड हम्म. let's see. In my opinion, again, I'm saying Arshdeep should have been given rest, and
शामी शुड हैव बीन गिवन अ शामी चांस। शुड हैव बीन देयर। और अगर आपने अर्शदीप को खिलाना या रेस्ट नहीं दे सकते हो, तो आपको प्रसिद्ध कृष्णा को रेस्ट दे ड्रॉप करना था और शामी को खिलाना था। हाँ, तो शामी शुड हैव बीन देयर, है ना, बिकॉज यू कांट ट्रीट योर स्टॉलवर्ड्स लाइक दिस। इज एज आई एग्री, सिंपल इज एज कंप्लीटली सिंपल अग्रीड ऑन दैट टॉपिक। इज एज सिंपल एज दैट। जस्ट एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, हाँ। देर माइट बी अ पोटेंशियल फॉर ऋतुराज गायकवाड़ बैक इन द टीम, क्योंकि अगर आप विजुअल को जो देख रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर है, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, उनके नाम के आगे एक स्टार लगा हुआ है। दैट मीन्स सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस फ्रॉम बीसीसीआई। तो अगर वो फिटनेस क्लियर नहीं कर पाते एंड इफ ही इज डिलेड हिज fitness and his comeback into the Indian team, there might be a possibility for Rituraj Gaikwad in the team. But for तो now, वो at least, ऋतुराज गायकवाड़, फिर वो ऋतुराज गायकवाड़ 15 में आएगा। और फिर hmm, भी मेरे को ये लगेगा कि मतलब ये मेरी गट फीलिंग है कि अगर अय्यर बाई चांस नहीं आता है, ऋतुराज गायकवाड़ टीम में आ जाता है, फिर hmm, भी ये ऋषभ पंत को ऊपर चांस देंगे, है hmm, ना। तो वो नहीं देंगे चांस। सी, अगर ऋतुराज गायकवाड़ को लॉन्ग रोप चाहिए, वो hmm. तभी मिलेगी जब आपके जितने जो प्लेयर हैं ये रिटायर हो नहीं रहे नहीं, हैं। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली छोड़ेंगे, अदरवाइज आपको रोप नहीं मिलेगा। इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। जायसवाल, एज वी डिस्कस लास्ट टाइम, पुअर चैप, बिकॉज शुभमन गिल इज कैप्टन, सो जायसवाल विल नॉट बी इन द 11। ही राइट, विल बी देयर इन द टीम, सो ही विल नॉट बी देयर इन द 11। इज एज सिंपल एज दैट। राइट। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। तो आपका जो भी शफलिंग वफलिंग होने वाली है, वो नीचे वाशिंगटन सुंदर को निकाल लो, वो नीतीश रेड्डी को डाल लो, और ये कर लो वो कर लो, एक स्पिनर एक पेसर को हटा लो, वो कर लो, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे अनटिल अनलेस कोई इंजरी हो जाती है। और जा पहले 2 वनडे हम जीत जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं ये ऋषभ पंत को भी ट्राई कर लो। अब ऋषभ पंत को भी अगर आप ट्राई करोगे तो किसकी जगह करोगे? कोई आज की डेट में कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होगा, ये भी बात ठीक है। है ना। कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होगा। गिल ने देख ही लिया जगह छोड़ के राइट, क्या हुआ T20 में, राइट। है ना। तो गिल ने तो, आई डोंट नो, दिस दिस इज ए कंट्रो, आई एम मे बी क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी, पर गिल नहीं चाहेगा कि भैया गायकवाड़ आए और उसको आप ओपन करा दो और वो 100 मार जाए, और फिर पता लगा फिर ही वन क्राई हो जाए कि गायकवाड़ इज बेटर देन गिल एंड गिल शुड बी आउट। सो देयर राइट, आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। तो गायकवाड़, जायसवाल, दीज गाइज विल गेट देयर रोप जब कोहली एंड रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के बाद बाय बाय कहेंगे, होपफुली वर्ल्ड कप जीतने के बाद। होपफुली, लेट्स होप फॉर दैट। और या। अभी अगर वर्ल्ड कप की बात करी ही है, तो हाँ। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड टॉपिक फॉर द डे, व्हिच इज द T20 वर्ल्ड कप फिक्सचर्स। तो Yes. ये अभी ग्रुप अनाउंसमेंट हुआ है T20 वर्ल्ड कप फिक्सचर्स का, हाँ। एंड वी कैन सी वी हैव 20 टीम्स इन दिस ईयर्स एडिशन ऑफ द मेंस T20 वर्ल्ड कप। और ये वर्ल्ड कप होस्ट होगा इंडिया और श्रीलंका के अंदर। Looking at the groups, there are a lot of new introductions. You have Namibia, you have Oman, Netherlands, USA. इतना आपने टूर्नामेंट को इन्फ्लेट किया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे राज? आप ये देखो, आपने क्रिकेट को वर्ल्ड वाइड ले जाना है, तो इसलिए आईसीसी अपना ट्राई कर रही है। पहली बात तो वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हर हर साल वर्ल्ड कप होता है, तो आप भूल ही गए हो जो हम पहले होता था कि 4 साल में हम वर्ल्ड कप की वेट करते थे, टीमों का कार्ड संभाल के रखते थे, ये रखते थे। वो सब चीजें तो आजकल की में हो नहीं रही। तो हर दूसरे दिन तो वर्ल्ड कप आ जाता है, तो वो मजा नहीं है। और चलो ठीक है, अब ये है, इसमें भी आपने इतनी टीमें घुसा ली हैं, तो इसमें वो पहले 4 5 6 मैच तो ऐसे ही होंगे जिसमें मतलब वो शुरू का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर आपने इंटरेस्ट रखना है, मेरे हिसाब से इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से किया जा सकता था कि फिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जो टीमें लास्ट वर्ल्ड कप में जिन्होंने सेमीफाइनल गए हैं, कि वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए। वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाएंगी, उनको क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ेगा। अब अगर 4 क्वालिफाई कर जाती है तो 16 बच जाती हैं, तो 16 क्वालिफायर खेलेंगी, ठीक है ना। 16 क्वालिफायर खेलेंगी, और उन 16 में से 6 जो टॉप की टीमें होंगी वो क्वालिफाई करेंगी। राइट, जो 6 टीमें टॉप की क्वालिफाई करेंगी, तो 6 + 4 10 बन जाती हैं, और उन 10 से फिर वर्ल्ड कप शुरू होता है। उन 10 को उन 10 को उसमें
दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, 5-5 के में, और उसमें से जो टॉप टू दोनों में रहेंगी वो सेमीफाइनल खेलने खेले, सो दैट वुड हैव बीन बेटर इन माय ओपिनियन, बट आई डोंट नो, नाउ व्हाटएवर डन इज डन, इफ whatever suggestion we have given, if somebody takes a look at this, maybe maybe next time you do it. Maybe next time you do it. But this is what, in my opinion, should have been the case. And what And is the see, mother of बाकी all टीमों को coincidences is हैं, that what is the mother of all coincidences is that पता नहीं कैसे हर बार पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में कैसे आ जाते हैं. अरे वो They तो ठीक say है, it is वो randomized, but आई डोंट नो, इट्स randomized और इज क्रिएटेड लाइक दैट, सो इंडिया एंड पाकिस्तान के ज्यादा मैच हों और आईसीसी उस हिसाब से ज्यादा पैसा कमाए एंड ऑल दैट स्टफ, सो एनीवे, फाइनेंशियल एंगल तो आ ही जाता है ना. फाइनेंशियल एंगल तो हो गई होगा ना कहीं तो फाइनेंशियल एंगल होगा ही होगा, है ना? इस हिसाब से क्या है कि ग्रुप वन में एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा, फिर क्वालिफाई कर देंगे तो एक मैच और मिलेगा, तो इस वर्ल्ड कप में मिनिमम 2 मैच हो जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के, है ना? तो हाँ. ये है कि 2 मैच होंगे, तो 2 मैच हैगा तो फाइनेंशियल एंगल आ जाएगा, तो वो वाला सीन है। चलो, let's see what there is in store for Indian cricket and for the rest of the teams who come and visit. अभी अगली वीडियो हमारी आएगी जब इंडिया और न्यूजीलैंड के मैचेस शुरू होंगे. द नेक्स्ट वीडियो विल बी पोस्टेड व्हेन द फर्स्ट ओडीआई बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया इज कंक्लूडेड. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बियॉन्ड द बाउंड्री, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू. बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी।